On the 15th of August, Bundelkhand University celebrated India's 77th Independence Day, where students, faculties, and staff members paid tribute to the nation and freedom fighters of India. It is a remarkable day. We honor and respect all our freedom fighters who fought for India's freedom. Let us take you through the highlights of this memorable event. The day began with the unity and discipline of the NCC cadets who stood shoulder to shoulder ready to welcome our esteemed guests and Vice Chancellor, creating an atmosphere of reverence and pride. The finance officer, a pillar of support for the university, arrived to oversee the meticulous arrangements made for this grand event, ensuring that everything was in perfect order. As the Vice Chancellor arrived, he was greeted with great honor and respect. The finance officer, controller of examination, NCC cadets, the registrar, and all the faculties of the university extended a heartfelt welcome to him, exemplifying the unity and the spirit of Bundelkhand University. With great pride, the Vice Chancellor hoisted the tricolor flag, symbolizing the spirit of our free nation. The national anthem echoed through the campus, filling our hearts with patriotism.
The celebrations continued at the prestigious Gandhi Auditorium. The registrar, in his eloquent speech, reminded us of the sacrifices made by our freedom fighters and the significance of this day. The Vice Chancellor then took the stage to deliver an inspiring speech emphasizing the importance of education and our role as responsible citizens in shaping the future of our nation. Adding a touch of culture and entertainment, our talented students put us mesmerizing dance performances encompassing patriotic, Bollywood, and devotional themes, leaving the audience spellbound. To recognize the achievements of our outstanding students, the Vice Chancellor presented certificates encouraging them to continue their journey of excellence. As the sun set on this remarkable day, Bundelkhand University celebrated not only the freedom won in 1947 but also the freedom to dream, aspire, and achieve. This event showcased the spirit of unity and patriotism that courses through the veins of every member of this esteemed institution. This was Sonali Yadav from Bhaskar Institute of Mass Communication and Journalism. उसको घोषित करने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बधाई और सुंदर आपके लिए शुभ हो, देश के लिए शुभ हो, समाज के लिए शुभ हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो भी इसी अमृत मंथन का एक नतीजा है जो हम लोग इस नई शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपने जो हमारा IKS सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको हम करेंगे। NEP के साथ साथ हम लोग IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम और भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और उसके बाद उन्होंने कहा जय अनुसंधान। तो ये हमारी NEP की जो एक लक्ष्य है वो विज्ञान, किसान और के साथ जो है अनुसंधान को आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात हमको आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी को अटूट बनाए रखने के लिए, उसके संदेश को पक्का रखने के लिए और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाए रखने के लिए आज हम इकट्ठा होते हैं। कि हम पहले भी जानते थे कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हम पहले से भी करते रहे, किंतु इसको दिवस के रूप में, थीम के रूप में मनाने का उद्देश्य ये है कि हमें प्रत्येक पल इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें देश को ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले देश को ध्यान में रखने की, तो इसलिए नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का जो थीम है, इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार से ये आह्वान करते हैं, छात्र छात्राओं से आह्वान करते हैं कि नेशन फर्स्ट की थीम को, इसको अपने जहन में उतार लें और इसको लेकर आगे बढ़ें। यही हमारे जो देश के, हमारे समाज के विकास का एक यंत्र बनेगा। स्वतंत्रता सेनानियों के विचार हैं, जो स्वतंत्रता के दौरान हमारे भूले बिछड़े सेनानी थे, उनको भी हमने इसमें तलाशा है और जो उनके आदर्श रहे हैं उनको हमने कोशिश की है संकलित करने की। सब छात्र छात्राओं से आज के अवसर पर मुझे एक बात जरूर कहनी है कि हम लोग संविधान को पढ़ते हैं, संविधान के साथ चलते हैं और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत हैं। महत्वपूर्ण संदेश है कि हमारे छात्र छात्राएँ, हमारे नागरिक मौलिक अधिकारों को मांगने के पूर्व, मौलिक अधिकारों को जानने के पूर्व मौलिक कर्तव्यों को अवश्य जाने। बिना मौलिक कर्तव्यों के जाने नेशन फर्स्ट की जो धारा है उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। केवल अधिकार ही हमें आवश्यक नहीं है, हमें कर्तव्य जानने जरूरी है। यदि हम अपने मौलिक कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि मौलिक अधिकार स्वतः हमारे हाथ में होंगे। आज के दिन का संदेश है कि हमें राष्ट्र को आगे रखना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करना है, राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना है और राष्ट्र की एकता और अखंडता का सम्मान करना है।
ये बातें यदि हम अपने जहन में रखें, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे नागरिक यदि इन सभी बातों को अपने जहन में रखते हैं और इसको आत्मसात करते हैं, तो जाहिर सी बात है दो समस्याएं हमारे देश के समक्ष है। एकता अखंडता की जो समस्या है, सांस्कृतिक वैमनस्य की जो समस्या है, विसंगतियों की जो समस्या है, वो स्वतः दूर हो जाएंगी। तो आज के इस अवसर पर हम सभी से सभी को शुभकामनाएं देते हैं और ये अनुरोध करते हैं कि अपने जो राष्ट्र की परंपरा है, राष्ट्र की संस्कृति है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्र के जो गौरव है, उनको हम उनका सम्मान करें, उनका आत्मसात करें और उसके साथ ही हम एक साथ सामूहिक रूप से समाज को, देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और नेशन फर्स्ट की धारा को और पुश करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। आज का दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का दिवस है। माननीय कुल सचिव महोदय ने सुंदर ढंग से बताया कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ स्वतंत्रता की भावना को पिरोने के लिए हमारा विश्वविद्यालय कटिबद्ध है। इसी श्रृंखला में अब मैं हमारे माननीय कुलपति महोदय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने आशीर्वाद वचनों से स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु हमारा पथ प्रदर्शन करें। माननीय कुलपति महोदय। हम जिस वक्त में यहाँ खड़े हुए हैं, तो जिस देश में रहते हैं, उनका कुछ जयकार करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस गांधी सभागार में और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस परिसर में आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है। हमने देश की आज़ादी के बाद लगभग 76 वर्षों का सफर तय कर लिया है और हम 100 वर्षों की अपनी यात्रा 2047 की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। हम जिन लोगों के कारण, जिनके बलिदानों के कारण, जिनके त्याग के कारण आज यहाँ खड़े हुए हैं, उनको याद करते हैं कि नमन है उन वीरों को, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद कराया। भारत माता के चरणों में सत सत नमन एवं प्रणाम करते हुए, भारतीय संविधान को कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस गांधी सभागार में, विश्वविद्यालय के परिसर में, इस अवसर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री विनय सिंह जी, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को प्रगति की ओर ले जा रहे वित्त अधिकारी श्री वसी मोहम्मद जी, परीक्षा की कमान संभाले हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप परीक्षाओं को संचालित करते हुए समयबद्ध सीमा में अनुशासन के साथ हमारे परीक्षा नियंत्रक श्री राज बहादुर जी, इस विश्वविद्यालय के सभी डीन, अधिष्ठाता, सभी 33 विभागों के विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, हमारे सभी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथी कर्मचारी बंधुओं,
इस सभागार में उपस्थित एनसीसी के कैडेट, जिसमें छात्र एवं छात्राएं हैं, आज प्रातः उन्होंने बहुत अच्छा परेड का और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। उसके लिए मैं एनसीसी के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। साथ ही सभागार में उपस्थित एनएसएस के जो हमारे स्वयंसेवक हैं, विभिन्न यूजी, पीजी, पीएचडी के छात्र एवं छात्राएं हैं, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और जैसा कि हमारे कुलसचिव जी ने बताया, ये एक बहुत अच्छा क्षण है, बहुत अच्छा दिन है कि हम अपनी सेल्फ एनर्जी से खुद सोचते हुए, राष्ट्र के बारे में सोचते हुए आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वर्ष में 365 दिन होते हैं, पर कुछ स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, कुछ दिवस ऐसे आते हैं जीवन में जो हमें एक गौरव और गर्व की अनुभूति करवाते हैं। आज हमने ये सब देखा कि किस प्रकार एक राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा है, ये भारत की एक पूरे विश्व में पहचान है, एक परिवार की पहचान है। हमारे भारत का धर्म ही संविधान है। इसके अस्तित्व को समृद्धता से भरते जाना हम सभी का दायित्व है और हम ये दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। हम सभी को ये भी एक गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के देशवासी हैं और ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे देश को हम विश्वव्यापी शरण में ले जाते हैं कि जिसका कि नारा है वासुदेव कुटुंबकम। हम एक ग्लोबल टीचर की भूमिका में आते हैं, एक ग्लोबल केयर टेकर की भूमिका में आते हैं और संपूर्ण विश्व को ये मैसेज, ये संदेश भी प्रसारित करना चाहते हैं कि भारत की जो हजारों वर्ष पुरानी जो परंपराएं हैं, कन्वेंशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसमें हम अपने परिवार से उठते हैं तो शहर के बारे में सोचते हैं, शहर से उठते हैं तो प्रदेश के बारे में सोचते हैं, प्रदेश से उठते हैं तो देश के बारे में सोचते हैं और देश से उठते हुए संपूर्ण विश्व के बारे में भी सोचते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे धर्म का ये भी मानना है कि भारत भी आगे बढ़ता है तो साथ में संपूर्ण विश्व को भी आगे बढ़ना है और हमारी ये कल्पना भी रही है। हम सभी को भी ये गर्व करना चाहिए कि हम एक ऐसे देश को प्रस्तुत करते हैं जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति पूर्ण जतन से की जा रही है और भारत सरकार इसमें पूरे प्रयास कर रही है। हम सभी लोग उस मनोवृत्ति से बाहर आ रहे हैं जहाँ सिर्फ स्वयं का लाभ, स्वयं की सफलता, स्वयं का फायदा, स्वयं का उत्कर्ष देखा जाता है। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि सभी को सुख शांति प्रेम, सभी की प्रगति हो, समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसे ही हम अपनी विरासत और संस्कृति और ट्रेडिशन के सहारे भारत आगे बढ़ रहा है। किंतु यदि आप देखेंगे 1857 उसके लगभग देखेंगे कि जब विभिन्न आक्रांताओं ने हमारे स्वर्णिम इतिहास को, हमारे सनातन धर्म परंपरा को, अपने भारत के साहित्य को, दर्शन को और जो ज्ञान प्रदर्शित करता था हमारा देश, उसको आक्रांताओं ने भी नहीं छोड़ा। और हमारे पूर्वज जो थे, जो अहिंसा के पुजारी थे, सहिष्णुता जिनका एक मूल उद्देश्य था, ऐसे लोगों को भी अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन का साक्षी बनना पड़ा। आप याद करिए कि आज से वर्षों पूर्व 1857 में जब भारत में एक चिंगारी पैदा हुई और कैसे एक ये सोच पैदा हुई कि हम अपने देश को स्वतंत्र करवाएं और हम पुनः अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए एक चेष्टा करें। भारत के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देशों से, विभिन्न प्रदेशों से लोग बाग आए, उन्होंने एक बीड़ा उठाया और धीरे धीरे अपनी यात्रा प्रारंभ की और लगभग 1857 से 90 वर्षों बाद जो युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप देखिए 90 वर्षों बाद, 90 वर्ष एक आम व्यक्ति की एक लाइफ रहती है, तो कई लोगों ने
उसमें बलिदान दिया होगा, पूरी लाइफ उसने आप सभी लोगों को, हम सब लोगों को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपना बलिदान किया। और 15 अगस्त 1947 को हम सभी लोग एक भारतीय जमीन पर भारत माता की गोद में खुली हवा में सांस लेने के लिए हमको आज ये अवसर प्रदान किया। अनगिनत नाम है, यदि भारतीय इतिहास पढ़ेंगे अनगिनत नाम है, कुछ नाम तो लोगों की जुबान पर है, कुछ चर्चा में है, कुछ गुमनामी के अंधेरों में हो गए हैं। तो भारत सरकार ने ये प्रयास किया है कि गुमनामी के अंधेरे में हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे ऐसे भारत के नागरिक हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके नाम पर विभिन्न प्रकार के राजमार्ग, विभिन्न बिल्डिंगों का नामकरण भी किया जा रहा है, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उसको उनके नाम से जान सके। इसी के तहत कर्तव्य पथ का निर्माण किया गया। अंडमान निकोबार में कुछ जेल्स का भी बदलाव किया गया। आज झांसी जो कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था, स्टेशन का नाम बदला। कई ऐसी विरासत हैं जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रखा जा रहा है। आज हम सब लोग उन्हीं असंख्य बलिदानियों ने जिन्होंने अपना रक्त दिया, अपने रक्त को सींचा भारत माता की गोद में, और इस युवा पीढ़ी के समक्ष, आप युवा पीढ़ी के समक्ष, हम सबके समक्ष एक आजाद देश की नींव रखी। इसी में आप सभी लोग भी सुनते जाते हैं कि एक गाने की बहुत अच्छी पंक्तियां भी हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जिन्होंने अपना प्राण त्यागा, बलिदान दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज भी आप देखेंगे कि जो राष्ट्रभक्ति के गाने हैं क्या दिखता है, जोश आता है, तो वही जोश के कारण आज इतनी बड़ी संख्या में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हमारे छात्र छात्राएं, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जैसे कि मेरा माटी मेरा देश। ये कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत को एक महान, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की हमारा जो संकल्प है, प्रतिबद्धता है, आप सब लोगों के साथ मिलकर वो प्रतिबद्धता संकल्प पूर्ण करना होगा। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की जननी भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी जगह बहुत तेजी से और तीव्र गति से बना रहा है। हम सभी लोगों को आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये भी सोचना चाहिए कि हम सभी को एक बार पूर्ण भावनात्मक एकता, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रवाद से उत्प्रोत होकर व्यक्तिगत लाभ और हानि को त्याग कर राष्ट्र हित में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हित में अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि ये भी माना जाता है कि आप पहले अपने परिवार में अपने कर्तव्यों का पालन करें। आप जिस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, जिस परिसर में काम करते हैं, जहाँ से आपकी रोजी रोटी चलती है, आपका परिवार चलता है, वहाँ पर अपना संपूर्ण उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और आपस की छोटी मोटी रंजिशें, विचार या मनभेदों को हटाकर हमको विश्वविद्यालय, अपना प्रदेश, अपने देश के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एक कवि जी ने बहुत अच्छी इसमें लाइनें कही हैं कि जो भरा नहीं है भागों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भागों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम स्वदेश की बात करते हैं, स्व विश्वविद्यालय की बात करते हैं। हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को एक अपना स्वदेश माने, स्वप्रदेश माने, एक परिवार माने, इस भावना से आप बात करें, काम करेंगे तो निश्चित ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ेगा, आप प्यार करेंगे। हर व्यक्ति को यहाँ पर लगभग 30 से 35-40 साल जो देश में महसूस होता है, अपना जीवन यापन करना है, तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए
तो लास्ट में भी आप आते हैं, पैदा होते हैं और अंत तक यहाँ पर रहते हैं। जैसे राष्ट्र से प्रेम करते हैं वैसे अपने परिवार और विश्वविद्यालय से भी प्रेम करते हुए आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। भारतीय इतिहास में पूर्व में जो भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को ये भी माना जाता था और तुलना की जाती थी वैश्विक स्तर पर कि गजराज से तुलना की जाती है। गजराज का नाम सुनते ही आपके दृष्टि पटल पर एक चित्र आता है कि गजराज मतलब बहुत बड़ा एक हाथी है और उसको सूंड है, कान भेजे हैं। तो इस प्रकार आज वर्षों पूर्व भारत को भी गजराज से माना जाता था, पर एक तो दूसरे सेंस में इसका जो इंटरप्रिटेशन किया जाता था वो ये किया जाता था कि जो कद काठी और शक्ति में तो बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी है, जियोग्राफी है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, पर किंतु ये क्रिटिक्स के द्वारा बोला जाता था सुसुप्त अवस्था में है। मतलब भारत जागृत नहीं है, वाइब्रेंट नहीं है, फायर नहीं है, पहले ये बोला जाता था। किंतु वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे हम भारत सरकार की बात करें, आज नागरिकों की जागरूकता एवं अपने दायित्वों के प्रति निर्भरशीलता के कारण, भारत सरकार की निर्भरशीलता के कारण अब भारत की तुलना पूरे विश्व में एक दहाड़ते हुए सिंह, रोलिंग लॉयन से की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि भारत एक बहुत तेजी से दहाड़ता हुआ सिंह है जो कि विश्व पटल पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। इसके यदि डिफरेंट वर्टिकल्स आप देखेंगे, यदि डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स उस पर देखेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि भारत कभी आर्थिक क्षेत्र में दहाड़ता है, तो कभी साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्टार्टअप में आगे बढ़ रहा है, कभी खेलों में हम अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं, परचम फहरा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में देखें तो आने वाले समय में भारतीय सीमा पर जिन पड़ोसी देशों में आक्रमण करने की चेष्टा की, हमने उनको धूल चटाने का प्रयास किया और सफल भी हुई। तो ये दहाड़ते हुए सिंह की निशानी है। ये भी हमको ये सोचना चाहिए कि जो देश आज वर्षों की गुलामी जिसने झेली और आज केवल उसको 76 वर्ष उसने पूर्ण किए स्वतंत्रता के, और सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद छोटे छोटे रियासतों, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने के बाद भी जो देश बहुत शॉर्ट समय के अंदर 76 वर्ष में कैसे अपने स्वर्णिम काल में पहुंच गया और पीछे छोड़ते, हमने पूरे विश्व को पीछे छोड़ते हुए आज भारत दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी है। आज उसी देश के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, जिस देश के लोगों ने भारत को एक कब्जा करके रखा था, भारत को एक कंट्रोल करके रखा था। आज उसी देश को रूल करने वाला, उसको गाइडेंस देने वाला भारतीय मूल का ही एक प्रधानमंत्री है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, जिन्होंने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी के अमृत महोत्सव की घोषणा की। और ये घोषणा जब की गई थी तो लोगों का ये सोच था कि अमृत महोत्सव और घोषणा ये क्या होगा, पर समय काल परिस्थितियों के बाद जब आपने देखा कि ये घोषणा में एक बिजली बनकर पूरे देश में फैल गई और जो हमने टारगेट अचीव किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो धीरे धीरे वो टारगेट को भी अचीव कर पा रहे हैं। और उन्होंने भारत को आगामी 24 वर्षों में जब 100 वर्ष पूरे होंगे, जो एक रोड मैप किया है, जो स्वर्णिम काल, अमृत काल माना जा रहा है, तो निश्चित ही अब ये विश्वास होने लगा है कि भारत 2047 तक विकसित देश भी होगा। 2030 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि वर्तमान इकोनॉमी $3.9 ट्रिलियन के साथ हम 5th पोजीशन पे हैं। निश्चित ही हम 3rd पोजीशन पे आएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि वही देश विकासशील से विकसित की तरफ कन्वर्ट करता है, जिसका GDP बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, इसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि इकोनॉमी बढ़ रही है तो मीन्स डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। यदि हम पहले की बात करें तो खासतौर से जो छात्र एवं छात्राएं यहाँ पर बैठे हुए हैं, 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आज आपको ऐसा लगता है कि उस समय तो बड़ा आसान रहा होगा, कुछ चुनौतियां नहीं होंगी, कुछ मुसीबतें भी नहीं होंगी। पर नहीं साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ
तो भारत के सामने मुसीबतों और चुनौतियों का हिमालय बहुत बड़ा था। संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और उस समय जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी, फंडामेंटल नीड्स थी, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं को तब तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक हरकुलेन टास्क था। लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की। हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने मेहनत की, देश के देशवासियों ने मेहनत की और बुनियादी समस्याओं को या बुनियादी जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति हुई। और आज हम वर्तमान परिवेश में ये देखते हैं कि जिस वस्तुओं के लिए, जिन आइटम्स के लिए भारत विदेशों की तरफ निगाह लगा के देखता था, आयात करता था, हम आत्मनिर्भर होते हुए बहुत तेजी से अब निर्यात की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत एक लीडिंग कंट्री है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। भारत कई वस्तुओं के निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब वर्तमान भारत सरकार देश को आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन की नई कहानी, नई लैंडस्केप लेके आगे बढ़ाने का बहुत तेजी से प्रयास कर रही है। निश्चित ही ये उपलब्धियां हम सभी को, 140 करोड़ भारतवासियों को गर्व एवं अनुभूति कराती हैं। पर साथियों, सवाल ये भी है जो युवा वर्ग बैठा हुआ है कि क्या इतना पर्याप्त है? हम 3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम 5 ट्रिलियन पहुंचेंगे, $8 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचेंगे, डिफेंस सेक्टर में रीच करेंगे, स्पोर्ट्स में रीच करेंगे, इनोवेशन में रीच करेंगे। क्या इतना ही ये पर्याप्त है? आपको सोचने का विषय है। और क्या हम और अच्छा कर सकते थे या कर सकते हैं? अगर विश्वविद्यालय परिसर में भी आप ये देखिए, आप सदैव ये लाइए कि हम और क्या अच्छा कर सकते थे, या आपने ये भी सोचिए कि आपने जो प्रयास अभी तक किए हैं क्या वो आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आप उससे बैठ और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी प्रकार देश के बारे में भी ये सोचना है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दें और क्या अच्छा करें। तो कोई परफेक्शन या सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, नहीं तो हर चीज स्टैंड स्टिल हो जाएगी। लगातार बढ़ना, एक्सेलरेट करना हम सबकी एक जिम्मेदारी है। इसके लिए आवश्यकता है कि देश का हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी सजग रहे। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो या हमारी विभिन्न सोसाइटियों हो, उसके साथ साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे आना होगा। स्वावलंबन की इस यात्रा में चुनौतियां भी हैं, मुसीबतें भी हैं और कुछ बुनियादी समस्याएं आज भी हैं। परसेंटेज कम हुआ है, जैसे गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, रिसर्च की बात करें, ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, ऐसी चुनौतियां अभी हमको बाकी हैं। पर जो प्रयास है शासन के, सरकार के, उसमें पूर्ण स्वावलंबन के लिए भारत सरकार प्रयासरत है और पूर्ण स्वावलंबन के लिए कई क्षेत्रों में पूर्ण समर्पण की भावना से सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा इनिशिएटिव किए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर यदि बात करें, पूरे यदि वर्ल्ड को हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में दो ध्रुव माने जाते हैं। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है। भारत अमेरिका और चीन के कुछ संकट आने का प्रयास कर रहा है और हमको सफलताएं भी मिल रही हैं। भारत का ये भी प्रयास है कि किस प्रकार से विश्व व्यवस्था को मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि दुनिया भी तभी सुरक्षित हो सकती है, विश्व पूरा तभी सुरक्षित हो सकता है कि जब वो बहुध्रुवीय मल्टीपोलर की सीरीज में वो कार्य करे। एक तरफ यदि चीन को देखेंगे तो चीन में लोकतंत्र है नहीं है, वहीं अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। पर यह माना जाता है कि परोक्ष रूप से अमेरिका में जो लोकतंत्र है वो पूंजीपति द्वारा शासित देश है, वहाँ की गाइडलाइन पूंजीपति ही चलाते हैं। ऐसे में भारत भी सभी लोकतांत्रिक स्तंभों के बीच पूर्ण संतुलन वाला एक मजबूत लोकतंत्र है, जो कि वासुदेव कुटुंबकम की श्रेणी पर कार्य करता है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से वर्तमान में भारत तीसरी भूमि का एक आदर्श दावेदार बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप ये भी देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में व्यापक एवं बहुपक्षीय परिवर्तन देख रहे हैं। आज इस विकास की गति देने के लिए निश्चित ही पूरे हमारे 140 करोड़ के देशवासी भी कहीं ना कहीं इस चीज के अधिकार रखते हैं कि उनका ये कंट्रीब्यूशन है। इस समय भारत पूरे विश्व में स्वीकार एवं समावेश की क्षमता दिखाई दे रहा है और भारत की नीतियों में एक लचीलापन भी है, एक इनोवेटिवनेस है, यूनिकनेस है और नवाचार भी। बड़ी एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत अपनी अलग से पहचान के साथ चमक रहा है, बल्कि कई मामलों में हम दुनिया की अगुवाई भी कर रहे हैं। यदि आप वर्तमान में देखेंगे तो भारत को एक ऐसे संगठन का अध्यक्षता प्रदान की गई है जो कि पूरे विश्व के 2 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। आज भारत G20 देशों का समिट का अध्यक्षता प्रदान की गई। मुझको भी कुछ माह पूर्व उत्तरांचल में G20 समिट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, ऋषिकेश में हुआ था। आप ये देखेंगे जब भारतीय दर्शन जब प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ पर क्योंकि उत्तराखंड में वहाँ की शैली को प्रस्तुत किया गया तो पूरा विश्व के 2/3 देशों के प्रतिनिधि आते हैं। तो भारत की जो सांस्कृतिक दर्शन परंपरा है, भारतीय दर्शन है, उससे निश्चित ही एक मैसेज लेकर जाते हैं। तो भारत का G20 ये समिट है, G20 मीटिंग है, निश्चित ही ग्लोबल लेवल पर भारत को एक बहुत बड़ी एक अवसर प्रदान कर रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी प्रदान कर रही है। हम यदि भारत सरकार की कुछ योजनाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात करें, क्योंकि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय कुलाधिपति महोदय जी का ये रहता है कि हर छात्राओं के बीच में माननीय प्रधानमंत्री की जो इनिशिएटिव्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव्स हैं, वो भी आपके पास पहुंचना चाहिए। सभी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, इजी आप बिजनेस। ये युवाओं को किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, उनको बिजनेस के लिए कैसे गाइडेंस किया जाए, इसमें है। और इसी के तहत एक युवाओं को सपने उनके पूर्ण करने के लिए, उनके सपनों को उड़ान देने के लिए जो लोन है, पहले बड़े टिपिकल कैटेगरी का होता था, आज बैंक एजुकेशन लोन दे रही है। आज भारत में स्टार्टअप का जनरेशन हो रहा है, कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न से बदल रहे हैं और वहाँ से पेटेंट और टैलेंट भी जनरेट हो रहे हैं। आज भारत में आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के गरीब वर्ग को जो मेडिकल या फैसिलिटीज थी उसके बारे में ये एक सिक्योरिटी दी जाती है कि 4 या 5 को पूर्ण किया जा सकता है। हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, झांसी के चारों तरफ 150 किलोमीटर प्लस पर आवर हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को देने के लिए 75 वंदे मातरम ट्रेनों की घोषणा की है। एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशनों भी बनाई गई है। आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं भी चले जाइए, एक्सप्रेस वे से परपेंडिकुलर कनेक्टिविटी है और आप पहुंच सकते हैं तेज गति से गाड़ी चलाते हुए। साथ ही भारत सरकार का ही इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। हम इस मंच के माध्यम से यहाँ के लोकल प्रशासन को, स्मार्ट सिटी को, डीएम को बधाई धन्यवाद देते हैं कि स्मार्ट सिटी के द्वारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 11 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की गई है और आने वाले समय में और भी स्थापित किया जाएगा। हम जब पहले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एंटर होते थे तो राइट लेफ्ट में तो अच्छा नहीं दिखता था, पर ये भारत सरकार की ही योजनाओं के कारण आप देखिए चारों तरफ ग्रेनाइट, जब ऐसा लगता है तो ऐसा लगता है कि हाईटेक यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहे हैं। तो ये ऐसी कई योजनाएं हैं। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेल्फ लाइन के बारे में हम ये जानेंगे, भारत सरकार ने ये 1 ग्रेड प्रधानमंत्री जी ने दिया, 1 ग्रेड 1 वर्ल्ड के बारे में एक सपना दिया, 1 सन 1 ग्रेड का एक सपना दिया। हमने ही मंत्र दिया है लाइफ और एनवायरमेंट। हम कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, एक बैलेंस ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। इसलिए यूएन द्वारा जो एसडीजी डेवलप किए गए, भारत को इसमें प्रमुखता से चुना गया। लोकल लेवल पर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम की लागू की गई है और ये हमारी भारत की कूटनीतिक सफलता और दूरगामी दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि आज हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। आज हर देश भारत में संयंत्र लगाना चाहता है। तो पूरे वर्ल्ड को ये लग रहा है कि भारत ये उभरता हुआ बाजार है। विश्वविद्यालय के लिए
सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी एवं विद्यार्थियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने पिछले वर्षों में जो भी काम करता हो, चाहे पॉजिटिव किया हो या नेगेटिव किया हो, कंट्रीब्यूट तो किया है। पॉजिटिव चीज विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कर देती है, नेगेटिव चीज रोकने के लिए कर देती है, पर मैं समझता हूँ पॉजिटिव सोर्स से ज्यादा है, इसलिए विश्वविद्यालय लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझको भी सुबह शाम कानों में सुनाई देता है कि फलां लोग कुछ ये कर रहे हैं, फलां लोग, मुझे ठीक है, उनकी एनर्जी इसमें लग रही है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के सभी शिक्षकों को, कर्मचारियों को और विद्यार्थियों को कि आप ये अनुशासन विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी विभागाध्यक्षों को, डीन्स को कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में ये नए नए नवाचार के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ हमारे पास आते हैं और हम लोग प्रयास भी करते हैं, कई बार सफल भी हो जाते हैं। मैं आभारी हूँ और इस मंच के माध्यम से धन्यवाद दूंगा हमारे कंधे से कंधा मिलाकर करने वाले अधिकारियों का, जिसमें हमारे कुलसचिव विनय कुमार सिंह जी हैं, विश्वविद्यालय के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हैं। उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर काम करते हुए वित्त अधिकारी वसीम मोहम्मद जी हैं, जो कि आप देखिए कि वित्त पे भी ध्यान देते हैं, एकेडमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं, टीचिंग लर्निंग पे भी ध्यान देते हैं। और उनका ये भी तारीफ है, उनका ये शब्द रहते हैं कि कुलपति जी, मेरा ऐसा ये सोचना है कि मैं अपनी सेवा काल में जितना अच्छा यहाँ कर जाऊँ, लोगों के लिए कर जाऊँ, यूनिवर्सिटी के लिए कर जाऊँ, तो लोग याद तो रखेंगे। एक पॉजिटिव सोच। उन्हीं के साथ हमारे परीक्षा नियंत्रक भी हैं, और इतनी बड़ी परीक्षाएं हैं, निश्चित ही कुछ समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, पर अपने शांत चित्त से बिना इरिटेट हुए समस्याओं का समाधान करते हुए आज परीक्षा प्रणाली को भी मजबूती से संभाले हुए हैं। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की इमेज स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर बड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कई चीजें विश्वविद्यालय को प्रदान भी की गई है। इंक्यूबेशन सेंटर को कुछ हमको ग्रांट दी गई है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन टीचिंग लर्निंग में हमको ग्रांट दी गई है, और साथ ही टेक्नोलॉजी इमेजिंग सेंटर में ग्रांट दी गई है। विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन R&D एक्टिविटीज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हमको अनुदान प्रदान किया जा चुका है और अनुदान प्राप्त करेगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आप लोगों के लिए जो कठोर परिश्रम और श्रम किया है, उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP BEd एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन और ये चुनौती भरा कार्य विश्वविद्यालय को किया है। और मैं पुनः आप सब लोगों का आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने गोपनीयता, शुद्धता, दक्षता और मेहनत के साथ आज करीब 5 लाख छात्रों का एग्जामिनेशन 1108 सेंटर पर सफलतापूर्वक आपने संचालित किया। विश्वविद्यालय के पूरे शिक्षक कर्मचारी इसमें 1108 सेंटर पर गए, आपने अपनी ड्यूटी की, वहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम थी उनको समझती हुए उसको रिजॉल्व किया और सफलतापूर्वक आयोजन पश्चात हमने परीक्षा परिणाम भी समयबद्ध सीमा में पूर्ण किया। विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया और दीक्षांत समारोह में माननीय कुलाधिपति महोदया, राज्यपाल महोदया द्वारा भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, जिसकी भी आप अधिकारी हैं। जो हमारे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं बैठे हुए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे वित्त नियंत्रक और कुलसचिव महोदय के द्वारा कई एक्टिविटीज को प्रारंभ किया गया है। चाहे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, मेधावी छात्र थे, उनके लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया है। विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए भी बजट में प्रोविजन किया गया है। यदि कोई ऐसे छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं जो दिव्यांगजन हैं, तो उनको भी नियमानुसार एक स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमने वो छात्रवृत्तियाँ प्रदान भी की है, स्कॉलरशिप प्रदान भी की है। यदि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता जाता है तो आपको भी उससे दिया जाएगा। आप लोग यदि कोई अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें विश्वविद्यालय द्वारा चीज मनी प्रदान की जाती है। और कुछ
शिक्षकों को जिसके प्रोजेक्ट अच्छे थे उनको सीट बनी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। हम मंच के माध्यम से हमारे झांसी ललितपुर के लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी जो बैद्यनाथ ग्रुप के माध्यम से रिसर्च स्कॉलर्स को कुछ छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, पैसा ट्रांसफर हो चुका है और दी जा रही है। हम पुनः उनका धन्यवाद इसलिए देंगे कि अभी कुछ माह पूर्व यहाँ पर आए थे तो सांसद जी कुछ अपने पिताजी की याद में बुंदेली हेरिटेज जैसी बुंदेली हेरिटेज सेंट्री के लिए भी कुछ पैसा यहाँ पीपीपी मॉडल से देंगे और यहाँ बुंदेलखंड की संस्कृति और विरासत को बुंदेलखंड के परिसर में यहाँ पर स्थापित करेंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए भी हमने 25 से 26 क्लब बनाए हैं। 25 से 26 क्लब बनाए हैं और 26 सेक्शनिंग आपको नया क्लब नहीं चाहिए, अच्छे लोगों को हम नया क्लब जोड़ेंगे और ये क्लब का संचालन छात्रों द्वारा छात्रों के ही किया जाता है। यहाँ पर कुछ छात्र छात्राएं अभी परफॉर्म करेंगे तो वो भी उस क्लब के माध्यम से ही ट्रेंड किए गए हैं। चिंतक महोदय ने, अधिकारी जी ने, कुल सचिव जी ने आपस में बातचीत करते हुए ये निर्णय में पहुंचे कि साहब भारत सरकार का जो डीए है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट का डीए है और जो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके तहत 3% का यूनिफॉर्मिटी आपको वेतन वृद्धि दी जाती है। देखिए कि पिछले कुछ माह में आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रेनोवेशन के काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। जब आप मेन गेट से एंट्री करते हैं तो स्मार्ट सिटी का धन्यवाद देते हैं, ग्रीनाइट रख दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में आते हैं तो आपको घुसने में अच्छा लगेगा। जितना हो सकता था उतना किया है, उसको रिनोवेट किया है। आप ये जितनी गार्डन्स देखेंगे तो विनीत कुमार जी इसके इंचार्ज हैं और गार्डन्स में आप देखेंगे आप बैठ के खाना खाते हैं, हमने भी देखा है, गार्डन्स को भी मेंटेन किया गया है। तो पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में वैसे तरीके से प्लांटेशन भी किया जा रहा है। आप देखेंगे एक माह के अंदर हमारे जितने 37 डिपार्टमेंट थी सभी 37 डिपार्टमेंट में हम रिनोवेट करवा रहे हैं। आपकी जो मूलभूत समस्याएं रहती हैं छात्राओं की, छात्र की, वो हम रिनोवेट करवा रहे हैं। हॉस्टल्स में मैथ को रिनोवेट करवा रहे हैं। हम वाशरूम की जो प्रॉब्लम है उसको रिनोवेट करवा रहे हैं। साथ ही हम जो डिपार्टमेंट हैं, लॉ डिपार्टमेंट में स्टूडेंट ज़्यादा हैं, लॉ, एग्रीकल्चर और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसको कि हम एक्सपांड कर रहे हैं। उसमें करीब 10 क्लासरूम्स और बन रहे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं हेतु अब जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, मैं समझता हूँ फिजियोथेरेपी में भी वर्क किया जा रहा है। फार्मेसी में प्रदेश शासन के द्वारा ग्रांट दी गई है, वो वहाँ भी कक्षाओं का निर्माण करवाया जा रहा है। इकोनॉमिक्स में सीबीएसई डेली लड़ाई करते थे सुबह शाम, किताब स्टूडेंट इतने ज़्यादा है, क्लासरूम नहीं है, तो उनकी भूमि पूजन शिलान्यास भी करवाया जा चुका है। साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी स्पोर्ट्स जो वाल स्टेडियम थी उसका भी शिलान्यास हम सभी लोगों द्वारा किया गया है, उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। सॉइल टेस्टिंग लैब भी कंप्लीट हो गई है और स्टूडेंट की ये भी एक समस्या थी कि खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे अधिकारियों ने एक आदेश दिया है किसी कंपनी को कि कैफेटेरिया भी रिनोवेट किया जा रहा है बहुत जल्दी और एक डेढ़ माह में ये कैफेटेरिया आपको नए रूप में दिखाई देगा और खाने के लिए भी आपको पौष्टिक फूड वहाँ दिया जाएगा और उसकी वेराइटीज भी मेंटेन की जाएंगी। इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि 118 से ज़्यादा एमओयू किए जा चुके हैं और जिसमें 20 से अधिक एमओयू इंटरनेशनल लेवल के हैं और ये इंटरनेशनल लेवल के हैं तो इसी के तहत ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित की गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित की गई है। तो सोलर स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने लगा दी हैं और अभी कुछ सोलर स्ट्रीट लाइट का ऑर्डर और दे दिया गया है तो पूरे कैंपस में लगाएंगे, क्योंकि भारत सरकार का इनिशिएटिव है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम अपने आप को कैसे आत्मनिर्भर कर सकते हैं, उसके तहत इनिशिएटिव लिया गया। हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर चार्जिंग पॉइंट है, वाटर इसके बाद आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वो भी यहाँ पर लगाया है और स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के माध्यम से जापानी टेक्निक के साथ एक प्लांटेशन भी स्मार्ट सिटी में यहाँ पर किया गया है। उनका ये कहना है कि 2 या 3 साल के अंदर वो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर हो जाएंगे। हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है तो प्लेसमेंट में
कई छात्र तो अपने लेवल पर प्लेसमेंट रहते हैं। तो ऑन रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने में जो रिकॉर्ड आया है उसके अनुसार 400 से अधिक छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट हुए। हमारी इसके लिए मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट के हमारे संदीप अग्रवाल और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। जैसे ही आप मेन गेट से घुसते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड लगा है, उस पर संदीप अग्रवाल जी लिखते हैं कौन सी कंपनी का कैंपस है, वहाँ पर लिखते हैं। कल ही मैं यहाँ से गुजरा था तो यहाँ पर एक पंचड़ी का प्लेसमेंट चल रहा था। तो देखिए प्लेसमेंट कंपनी बुलवाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब जब आप अंदर रहेंगे, जब आप प्लेसमेंट कंपनी के साथ आप रहेंगे तो आपका टेक्निकल क्या होगा, एचआर क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन क्या होगा, क्या आपकी आउटरीच है, क्या आईक्यू लेवल है, क्या ईक्यू लेवल है, वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और हमारे वित्त अधिकारी जी के लिए भी देखिए इनोवेटिव आइडिया कि हमारे कई बैंक में यहाँ पर अकाउंट हैं, तो इन्होंने ये बोला है कि भाई फंड अंदर ट्रांसफर करेंगे कि आप कंपनी लेके आइए और कुछ प्लेसमेंट करिए। तो पब्लिक सेक्टर के कुछ बैंक द्वारा इकोनॉमिक्स MBA के छात्र छात्राओं के प्लेसमेंट भी यहाँ पर किए गए। तो निश्चित ही छात्र छात्राओं के प्लेसमेंट हमारी प्रायोरिटी में है। आने वाले समय में विश्वविद्यालय के प्रयास रहेगा कि प्लेसमेंट के क्षेत्र में हम और आगे बढ़ सकें। पुनः आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, बस आदमी है ना लड़ाई कराने 40 साल तक आपको रहना है विश्वविद्यालय में, आदमी लड़ाई करने में मशहूर है, इसका ये इसका वो। तो द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी राणा का बेटा, तू भी राणा का बेटा है, देश जहाँ तक फैला जाए। तू भी राणा का बेटा है, देश जहाँ तक फैला जाए। और जिसमें दोनों तरफ लिखा है भारत, और जिसमें दोनों तरफ लिखा है भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम एक संकल्प के साथ एक भारत के साथ ही हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी अपने अमृतकाल, अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहा है बहुत तेजी से। उसमें मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आपका एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। और आप जितना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना विश्वविद्यालय की ग्रोथ में आप लोग कंट्रीब्यूट करें। हम सभी लोग जो अधिकारी हैं, चाहे परीक्षा नियंत्रक हों, कुल सचिव हों, वित्त अधिकारी हों, मैं खुद आने वाली चुनौतियों के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि आप बुंदेलखंड के लिए अपना संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ समर्पित करेंगे और विश्वविद्यालय को पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक उत्कृष्ट और एकेडमिक एक्सेलेंस की पहचान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उन्हें एक बात बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।